future designers, welcome back to our YouTube channel. This is Sugra Fatma, a MIP alumni and your design mentor. So, guys, a lot of you were asking about the strategy for the UC examination. So, today I have come up with the UC 6 months preparation strategy. तो चलिए गाइस स्ट्रैटेजी को समझने की कोशिश करते हैं कि अभी 6 महीने बाकी हैं हमारे एग्जाम्स को तो उसके लिए क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए हमारी वन बाय वन लेट्स सी। तो गाइस पहले किसी कोई भी स्ट्रैटेजी बनाने से पहले मैं हमेशा आपको ये सजेस्ट करती हूँ कि वी शुड नो द सिलेबस ऑफ इट राइट पेपर पैटर्न syllabus each and everything and then we should start with the strategy. So let's see pre-exam approach. Okay, now familiarize yourself with exam pattern, understand the structure of the exam including the type of questions, marking scheme and time allocations. Okay, then review the syllabus. Go through the official syllabus provided by UCET. Understand the topics and concepts you need to cover for each section of the exam. So guys, ये मैं हमेशा सजेस्ट करती हूँ कि जब भी आप स्ट्रैटेजी बना रहे हो किसी भी एग्जाम्स की तो आप हमेशा उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए और वहां से जो सिलेबस है वो डाउनलोड कर लीजिए राइट। क्योंकि हमेशा हर बार जो पैटर्न होता रहता है और या सिलेबस होता है वो चेंज होता रहता है। ओके, सो वो चेंज आपको तभी वो जेन्युइन चेंज आपको तभी पता चल सकता है जब आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे और वहां से देखेंगे। ओके, सो डू नॉट गो एल्सवेयर एंड ऑलवेज गो और रेफर द ऑफिशियल वेबसाइट। नाउ लेट्स सी द पेपर स्ट्रक्चर फॉर यूसीट। ओके, सो आप ये स्क्रीनशॉट देख सकते हैं, ये मैंने यूसीट की वेबसाइट से ही लिया है और मैं यहाँ पे आपको समझाऊंगी टाइप ऑफ क्वेश्चन, number of question, marks for incorrect, for for correct, for wrong, and for attempted question. Okay. Now, type of question. So the first type of question is numerical answer type, which is NAT. Okay. And the number of questions allocated are 14. Similarly, if marks for correct answer is 4 and marks for wrong answer is 0, marks for question not attempted is 0, and total marks for the section is this, right? 56. Now, टाइप ऑफ क्वेश्चन, ठीक है, मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन। अब दूसरा जो टाइप होता है क्वेश्चन का होता है मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन, जिसको हम कहते हैं MSQ। ओके, एंड द नंबर ऑफ क्वेश्चन इज 15, मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर पार्शियल मार्किंग होती है इसमें, मार्क्स फॉर रॉन्ग आंसर -1, मार्क्स फॉर क्वेश्चन नॉट अटेम्प्टेड 0, एंड टोटल मार्क्स फॉर दिस पर्टिकुलर सेक्शन इज 60। नाउ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ठीक है, अगर मैं बात करूं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की तो नंबर ऑफ क्वेश्चन इज 28, marks for correct answer 3, and marks for wrong answer is -0.71, right? Marks for a question not attempted 0, and total marks goes like 84. Okay, so total number of question are 57, marks for correct answer, marks for wrong answer, marks for not attempted, and the total marks for the question is 200। ठीक है, तो इस तरीके से मार्क्स जो होते हैं वो एलोकेटेड रहते हैं, राइट। नाउ गाइस लेट्स सी द एप्टीट्यूड सिलेबस। अब देखते हैं एप्टीट्यूड सिलेबस जो होता है वो यूसीट एग्जाम के लिए क्या होता है। ठीक है, तो चलिए वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। ओके, so first I'll start from here, visualization and spatial reasoning. Okay, visualization of 3D shapes, hidden figure and block counting, rotated blocks, matching pieces and parts, spatial analysis, understanding pattern, eye hand coordination, surface counting. And practical and scientific knowledge includes gear and pulley problem, tools knowledge, basic physics concepts, force, center of mass, gravity, कपल और फोर्स एंड इनर्शिया। ठीक है, तो ये सिलेबस है एप्टीट्यूड का जो पार्ट ए है आपका। आगे बढ़ते हैं, टू बी कंटिन्यूड। ओके, ऑब्जर्वेशन एंड डिजाइन सेंसिटिविटी में फॉन्ट एनालिसिस, स्पॉट द डिफरेंस, पजल डिजिटल नंबर एंड 8 पीसेस पजल, ट्रेसिंग फिगर, ट्रेसिंग विदाउट लिफ्टिंग पेन। एरिया एंड वॉल्यूम की बात करूं तो उसमें होता है ज्योमेट्री, ट्राइंगल एंड सर्कल, 2D फिगर्स एरिया एंड 3D फिगर्स पॉलीगॉन्स। Environment and society, general awareness of environmental, social, and cultural connection with design. Creativity, graphs of verbal and non-verbal analogies, okay, metaphors, signs and symbols. तो ये सारी चीजें इंक्लूडेड होती हैं, ठीक है, ऑब्जर्वेशन, डिजाइन सेंसिटिविटी, एनवायरमेंट एंड सोसाइटी में। नाउ मूविंग ऑन फर्दर, ओके,
एनालिटिकल एंड लॉजिकल रीजनिंग में देखते हैं क्या क्या चीजें कवर होती हैं, ठीक है। सो ability to analyze qualitative and quantitative information which include series, analytical reasoning, figure counting, paper folding and paper cutting, image analysis, analogy, mirror image and water images, pattern completion, figure metrics, okay, cube and dices, classification, construction of square and triangles. वर्बल रीजनिंग में देखूं तो ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन सेंस, सीटिंग अरेंजमेंट, वेन डायग्राम, पजल टेस्ट, स्पीड टेस्ट एंड डिस्टेंस, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, ठीक है। तो ये सारी टॉपिक जो आते हैं वो एनालिटिकल और लॉजिकल रीजनिंग में आते हैं यूसीट के पार्ट ए में, ठीक है। Now we will see the visualization and spatial reasoning. Okay, so visualization of 3D shapes, hidden figure and block counting, rotated blocks, matching pieces and parts. Okay, अगर वहीं मैं देखूं एनालिटिकल एंड लॉजिकल रीजनिंग में तो सीरीज, एनालिटिकल रीजनिंग, फिगर काउंटिंग, पेपर फोल्डिंग एंड पेपर कटिंग। ओके, नाउ एरिया एंड वॉल्यूम की बात करूं तो ज्योमेट्री, ट्राइंगल, लैंग्वेज की बात करूं तो रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, वन पैसेज पर वीक, ठीक है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी वन पैसेज पर वीक पढ़ने का। वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन में 20 वोकैब पर वीक, ठीक है, इस टाइप से हम देखेंगे, ठीक है। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द लैंग्वेज proficiency in reading and comprehending standard English, reading comprehension, vocabulary based question, one word substitution, word analogy, synonyms, antonyms, word spellings, grammar based question में sentence completion, close test, idiom and phrases, error spotting and para jumbles। तो ये पार्ट हो गया पूरा एप्टीट्यूड का। अब गाइस हमने सिलेबस देख लिया, हमने मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देख लिया, अब हम देखेंगे प्लानिंग एंड कंसेप्चुअलाइजिंग। तो गाइस मैं आपको सजेस्ट करूंगी फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट गो through the whole syllabus. Okay, you can, as I've suggested, you can visit the official website of UC, download the download the PDF where it's given marks distribution and the whole syllabus. Okay, after downloading it, start planning and conceptualizing. What you will do, familiarize yourself with the exam pattern and analyze past year paper, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप देखिए कि किस क्वेश्चन को कितने मार्क्स डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, राइट, और कहाँ नेगेटिव मार्किंग होती है, कहाँ नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है किस सेक्शन में। उसी के साथ आई वुड सजेस्ट यू टू विजिट एंड सी द पास्ट ईयर पेपर्स, ठीक है। आप पास्ट ईयर पेपर्स डाउनलोड कर सकते हैं और उनको एनालाइज करने की कोशिश कीजिए कि किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन आया था और किस टॉपिक से कौन सा ऐसा टॉपिक है जिससे ज्यादातर क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं, राइट। तो इस तरीके से आपको पेपर एनालाइज करने की जरूरत है। नाउ मंथ 1 की प्लानिंग देखते हैं, ठीक है। तो विजुअलाइजेशन एंड स्पेशल रीजनिंग, उसमें स्पेशल एनालिसिस, अंडरस्टैंडिंग पैटर्न, आई हैंड कोऑर्डिनेशन, सरफेस काउंटिंग, ओके। एनालिटिकल एंड लॉजिकल रीजनिंग में देखूं तो इमेज एनालिसिस, एनालॉगी, मिरर इमेजेस एंड वाटर इमेजेस, ठीक है। एरिया एंड वॉल्यूम की बात करूं तो ज्योमेट्री और सर्कल, ठीक है। और लैंग्वेज में रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, जिसमें एक पैसेज हर वीक पढ़िए, और वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन में 20 वोकैब पर वीक, ठीक है। अगर आप इस तरीके से प्रिपेयर अपने टॉपिक्स को रखेंगे मंथ 1 में, ठीक है, तो आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी। तो दीज आर द टॉपिक दैट शुड बी कवर्ड इन 1 मंथ। नाउ मंथ 2 को देखें तो प्रैक्टिकल एंड साइंटिफिक नॉलेज में गेयर एंड पुली प्रॉब्लम, टूल्स नॉलेज, बेसिक फिजिक्स concepts, फोर्स, सेंटर ऑफ मास, ग्रेविटी, कपल ऑफ फोर्स एंड इनर्शिया। वही मैं देखूं एनालिटिकल एंड लॉजिकल रीजनिंग में तो पैटर्न कंप्लीशन, फिगर मैट्रिक्स, क्यूब्स एंड डाइसेस। नाउ एरिया एंड वॉल्यूम की बात करूं तो 2D फिगर्स, एरिया, पैरामीटर रिलेटेड क्वेश्चन। लैंग्वेज में देखूं तो रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, वन पैसेज पर वीक। वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन की बात करूं तो 20 वोकैब पर वीक, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने जो है सिलेबस को रख सकते हैं, राइट, टॉपिक्स को डिवाइड कर सकते हैं, सेग्रीग्रेट कर सकते हैं। तो ये मंथ 2 के टॉपिक्स हो गए। नाउ मंथ 3 की बात करूं अगर तो ऑब्जर्वेशन एंड डिजाइन सेंसिटिविटी, जिसमें फॉन्ट एनालिसिस, स्पॉट द डिफरेंस, पजल, डिजिटल नंबर एंड 8 पीसेस पजल, ट्रेसिंग फिगर, ट्रेसिंग विदाउट लिफ्टिंग पेन। एनालिटिकल और लॉजिकल रीजनिंग में अगर हम देखें तो क्लासिफिकेशन, कंस्ट्रक्शन ऑफ स्क्वायर एंड ट्राइंगल और ब्लड रिलेशन, ठीक है। एरिया एंड वॉल्यूम में देखूं तो 3D फिगर्स, पॉलीगॉन, सरफेस एरिया, वॉल्यूम रिलेटेड क्वेश्चन। लैंग्वेज में अगर देखूं तो रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, वन पैसेज पर वीक, और वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन में 20 वोकैब पर वीक, ठीक है।
तो ये हो गई हमारी प्लानिंग मंथ 3। ये सारे टॉपिक्स आपको थर्ड मंथ तक कंप्लीट करने हैं। नाउ मंथ 4 की अगर बात करें तो क्रिएटिविटी, ओके, ग्रास्प ऑफ वर्बल एंड नॉन वर्बल एनालॉजीज, मेटाफर्स, साइंस एंड सिंबल्स, एनालिटिकल एंड लॉजिकल रीजनिंग में डायरेक्शन सेंस, सिटिंग अरेंजमेंट। एप्टीट्यूड की बात करूं तो स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। एंड इफ आई टॉक अबाउट लैंग्वेज, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन 1 पैसेज पर वीक एंड वोकेबलरी बेस्ड क्वेश्चन में 20 vocab पर वीक। ठीक है, तो गाइस अगर ये पार्ट आप कंटिन्यूअसली करते रहोगे ना, जो मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ, 1 पैसेज पर वीक एंड फॉर वोकेबलरी बेस्ड क्वेश्चन यू हैव टू कवर 20 vocab पर वीक। ठीक है, तो ये आपकी जो प्रैक्टिस है ये रोज होती रहेगी, राइट। ये हो गए हमारे मंथ 4 के टॉपिक्स। आगे बढ़ते हैं मंथ 5 में, देखते हैं क्या करना है। इन्वायरमेंट एंड सोसाइटी में जनरल अवेयरनेस ऑफ इन्वायरमेंटल, सोशल एंड कल्चरल कनेक्शन विद डिजाइन, एंड एनालिटिकल एंड लॉजिकल रीजनिंग में वेन डायग्राम और पजल टेस्ट। ओके, नाउ एरिया एंड वॉल्यूम की बात करूं तो उसमें हम ज्योमेट्री में ट्राइंगल, ठीक है, ये कवर कर सकते हैं। और अगर लैंग्वेज अगर हम यहाँ देखेंगे तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जिसमें 1 पैसेज पर वीक, और वोकेबलरी बेस्ड क्वेश्चन में 20 vocab पर वीक, राइट। तो ये सारे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे हमारे मंथ 5 में। ठीक है, 5th मंथ में हमें ये सारे टॉपिक कंप्लीट करने होंगे। नाउ मंथ 6 का देखते हैं। तो रिवीजन एंड कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग एंड सॉल्व पीवाईपी एंड मॉक टेस्ट। ठीक है, तो गाइज मंथ 6 है वो आपका टोटली डेडिकेटेड होना चाहिए कि जो भी आपने कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं, राइट, आप उनको प्रैक्टिस करें, पीवाईपी प्रैक्टिस करिए, जितना जितना ज्यादा आप रिवीजन कर सकते हैं रिवीजन करिए, मॉक टेस्ट लीजिए, राइट, ताकि आपकी प्रैक्टिस होती रहे। Now, revision. Review all the topics covered so far. Focus on areas where you feel less confident and strengthen your understanding. Create a study schedule. Develop a realistic study schedule that allocates sufficient time for each subject according to your strengths and weaknesses. Include regular breaks to avoid burnout. Mock test. Take regular mock tests to simulate exam condition and assess your preparation level. Analyze your performance and identify areas for improvement. Time management. Practice managing your time effectively during the exam. Allocate specific time for each section and practice solving questions within the allocated time frame. Now practice previous year's papers. Solve previous year UCET question paper and sample paper to familiarize yourself with the exam pattern, question types and time management. Analyze your performance to identify areas for improvement. So guys, जब आप अपना एक schedule बना लोगे, right, जो जो आप सुबह से लेकर जो जो एक्टिविटीज आप करते हो, राइट, उनका एक स्केड्यूल बना लो ताकि आपको पता चले कि आपका कौन सा टाइम कहाँ जा रहा है, राइट, और फिर वो टाइम आप मैनेज कर पाओ इजिली। आफ्टर मेकिंग योर स्केड्यूल, आप मॉक टेस्ट लेना, जो आपने कंसेप्ट पढ़े थे, राइट, उसके साथ ही आप मॉक टेस्ट लेना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, और देखिए कि आप मॉक टेस्ट में कितना टाइम ले रहे हैं। ठीक है, अगर टाइमर नहीं है तो आप खुद से टाइमर लगाइए और अपना टाइम मैनेजमेंट इससे आपका एनालाइज हो जाएगा कि आपका कितना टाइम जा रहा है ड्राइंग पार्ट, कितना टाइम जा रहा है आपका एक क्वेश्चन में, राइट। और जितना ज्यादा पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं, क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। Now, last week before exam, relaxation and confidence building, quick revision and stay organized. ठीक है, तो गाइस लास्ट वीक जो रहता है हमारा एग्जाम का, वो वाला सबसे इम्पोर्टेंट वीक होता है वो हमारी लाइफ का। ठीक है, क्योंकि जो भी हमने पढ़ा है इन मंथ में, राइट, उस वीक में हमें वो सारी चीजें एकदम, उस वीक तक हमें एकदम क्लियर होना पड़ता है। ठीक है, अपने डाउट्स के साथ, सारी चीजों के साथ। तो मैं आपको यही करूंगी, लास्ट वीक में आप जो मंथ आपने जो स्ट्रैटेजी जो मैंने आपको अभी दिखाई है, ठीक है, उसको फॉलो करिए। अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो लास्ट वीक में जो एक हसल होता है, राइट, एंजाइटी होती है और आपको लगता है कि कुछ छूट गया है, ठीक है, तो उन सारी चीजों से आप बच सकते हैं, क्योंकि उस वीक में आपको सिर्फ रिलैक्स माइंड, क्योंकि रिलैक्स माइंड कैन ओनली प्रोड्यूस क्रिएटिविटी, राइट। और आपको एकदम रिलैक्स होना चाहिए। आपके एडमिट कार्ड में जो सारी चीजें हैं उन पे तैयारी कीजिए। फॉर एग्जाम्पल, गो फॉर द मटीरियल, look or see for the materials that you should take with in your examination, right? चलिए आप पार्ट बी देखते हैं। ठीक है, तो पार्ट बी में गाइस टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होते हैं वो 2 होते हैं, जो कि 100 मार्क्स के आते हैं और आपको 60 मिनट दिया जाता है। ठीक है, मतलब एक क्वेश्चन आपको 30 मिनट में करना होता है। नाउ फर्स्ट जो होता है वो स्केचिंग का होता है, जिसमें से 50 मार्क्स एलोकेटेड होता है, और जो दूसरा क्वेश्चन आता है वो डिजाइन एप्टीट्यूड से आता है। ठीक है,
जिसमें से 50 मार्क्स एलोकेटेड होता है, राइट? तो इस तरीके से चीजें आपको मिल जाएंगी क्वेश्चन पेपर में। नाउ प्री एग्जाम अप्रोच। तो मैं हमेशा बताती हूँ कि हमेशा जब भी स्ट्रैटेजी बनाए तो अपना एक पेपर पैटर्न देख लें, राइट? तो ड्राइंग में जैसे हमने एप्टीट्यूड में देखा है, सेम वी विल डू विद द ड्राइंग पार्ट ऑल्सो। हम ड्राइंग में पहले पूरा पैटर्न जो है वो देख लेंगे ऑफिशियल वेबसाइट से, राइट? कि कहाँ कितने मार्क्स एलोकेटेड होते हैं, राइट? पैटर्न क्या होता है, कहाँ पे निगेटिव मार्किंग होती है, कहाँ पे नहीं होती है। तो अगर इन सब चीजों से आप फेमिलराइज हो जाएंगे तो इट विल बी इजियर फॉर यू टू मेक अ स्ट्रैटेजी। Review the syllabus. Go through the official syllabus provided by UCEED, understand the topic and concepts you need to cover for each section of the exam. ठीक है? Now, drawing syllabus for UCEED exam. आप पार्ट बी के सिलेबस को देखते हैं गाइस। तो फाउंडेशन होता है पहले, उसमें शेप टू फॉर्म, ऑब्जेक्ट ड्राइंग और शेडो फॉर्मेशन, ये सारी चीजें हमें तैयार करनी रहती है। पर्सपेक्टिव में 1 पॉइंट, 2 पॉइंट और 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव। अगर वहीं मैं बात करूं एनाटॉमी की, तो एनाटॉमी में मेल, फीमेल, एक्शन एंड पर्सपेक्टिव। ठीक है? तो एनाटॉमी में मेल, फीमेल, एक्शन एंड पर्सपेक्टिव, ये सारी चीजें आप कवर करते हैं। Now, facial expression, scene creation, memory design, color theory, elements and principles, design aptitude and design thinking. तो ये सारे टॉपिक हो गए आपके ड्राइंग के। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द स्ट्रेटजी फॉर मंथ 1। ठीक है? तो जैसे कि मैंने बोला फाउंडेशन से हम देखते हैं। तो टॉपिक में हो गया शेप टू फॉर्म, ऑब्जेक्ट ड्राइंग, शेडो फॉर्मेशन। ओके, अंडरस्टैंड बेसिक्स, familiarize yourself with fundamental drawing concepts like line, shape, form, perspective, proportion, shading and composition। ठीक है? Practice sketching. Dedicate time to daily sketching sessions. Focus on simple objects, still life arrangements, and basic shapes to enhance your observational skills. ठीक है? तो गाइस पहले तो बेसिक समझने की कोशिश करो। ठीक है? उसके बाद जब आपका बेसिक शेप, फॉर्म, पर्सपेक्टिव, प्रोपोर्शन, इन सबसे आप क्लियर हो जाओ, देन मूव ऑन टू द प्रैक्टिसिंग द स्केचिंग पार्ट। नाउ इंस्पिरेशन, प्लानिंग एंड डेवलप ड्राइंग स्किल्स। ठीक है? तो इसमें पर्सपेक्टिव का 1 पॉइंट, 2 पॉइंट और 3 पॉइंट मंथ 2 में ये हमारी स्ट्रैटेजी होगी कि हम 1 पॉइंट, 2 पॉइंट और 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव को देखेंगे। लर्न पर्सपेक्टिव ड्राइंग, स्टडी 1 पॉइंट, 2 पॉइंट एंड 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव, प्रैक्टिस ड्राइंग सीन्स इनकॉर्पोरेटिंग दीज पर्सपेक्टिव। तो गाइस मैं हमेशा आपको सजेस्ट करती हूँ कि जब भी आप कभी बाहर भी जाते हैं, इफ यू आर गोइंग टू अटेंड एनी फेयर और एग्जीबिशन, ओके, you're coming back or you're just taking a stroll on a street, right? When you're coming back, do practice the scenes that you have seen in while walking on the road, right? Or you when you visited the exhibition, right? Do make a rough sketch of it and see कि वो perspective उसमें आ रहा है या नहीं आ रहा है, shapes जो आपने देखे थे वो shapes उसमें आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, right? And then keep practicing, keep drawing it, right? मंथ 3 की बात करूं तो इंस्पिरेशन, प्लानिंग एंड डेवलप ड्राइंग स्किल्स, जिसमें एनाटॉमी, मेल, फीमेल, एक्शन एंड पर्सपेक्टिव देखेंगे, सीन क्रिएशन और मेमोरी डिजाइन देखेंगे। ठीक है? इसमें स्टार्ट वर्किंग ऑन योर प्रोजेक्ट, फोकसिंग ऑन रफ स्केचेस एंड बेसिक आउटलाइन, पार्टिसिपेट इन ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन, क्रिएटिव वर्कशॉप एंड एक्सरसाइज टू स्टिमुलेट योर क्रिएटिविटी। ठीक है? तो ये हमारा मंथ 3 की प्लानिंग होनी चाहिए, सीन क्रिएशन, मेमोरी डिजाइन और एनाटॉमी। नाउ अगर मैं मंथ 4 की बात करूं तो उसमें डिजाइन एप्टीट्यूड हम कवर करेंगे, जिसमें केपेबिलिटी टू प्रैक्टिकली एंड अप्रोप्रिएटली रिस्पॉन्ड टू प्रॉब्लम सिचुएशन विद इंजेन्युइटी एंड एम्पैथी। ये गाइस मैंने यूसीट की जो वेबसाइट है ना वहां से ही लिया है। उसमें साफ लिखा है डिजाइन एप्टीट्यूड में कि बेसिकली यूसीट जो है ना वो प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन पे फोकस करता है। उसमें ज्यादातर ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन से रिलेटेड होते हैं। ठीक है? तो आप कोशिश कीजिए जब भी आप अपने घर पे हो, राइट, एंड यू सी योर मदर वर्किंग in the kitchen or dealing with the dishes, and see if she's finding any problem with it, and try to start with the brainstorming, ask her what is the problem that she's facing, and try to do the ideation part, try to find a solution for it, right? इस तरीके से अगर आप रेगुलरली ये प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, ठीक है, और प्रैक्टिस करते रहेंगे, तो आई एम श्योर बाय द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन यू विल हैव अ क्लियर आइडिया ऑन दिस। Design thinking, problem identification regarding situation or any product. For example, mention same problem travelers face while traveling in
थर्ड क्लास, अपार्ट कंपार्टमेंट ऑफ ट्रेन, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड कनेक्टिंग डॉट्स। तो गाइज एक डिजाइन थिंकिंग में इस टाइप के भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि आपको प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करनी है, ठीक है, उन ट्रैवलर्स के लिए जो कि थर्ड क्लास में जब ट्रैवल करते हैं तो उनको क्या क्या प्रॉब्लम आती है, राइट। तो ये इस टाइप के गाइस क्वेश्चन आ सकते हैं। नाउ फिफ्थ मंथ में हम देखेंगे प्रैक्टिस सॉल्विंग डिजाइन एंड ड्राइंग रिलेटेड प्रॉब्लम। इसमें लर्न डिजाइन प्रिंसिपल एंड कलर थ्योरी, सॉल्व डिजाइन प्रॉब्लम्स, प्रैक्टिस सॉल्विंग डिजाइन रिलेटेड प्रॉब्लम्स एंड challenges to improve your problem solving skills, and strategic preparation for specific topics, perspective drawing, composition एंड डिजाइन एंड एक्सप्रेसिव डिजाइन। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम रख सकते हैं मंथ फिफ्थ के लिए, राइट। नाउ लास्ट मंथ में देखते हैं क्या करना चाहिए। सॉल्व पीवाईपी एंड मॉक टेस्ट, मॉक टेस्ट, टाइम मैनेजमेंट एंड प्रैक्टिस पीवाईपी। ठीक है, तो गाइस टाइम मैनेजमेंट सबसे बड़ा इशू होता है स्टूडेंट्स का, राइट, जब वो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे होते हैं, जो कि तभी सॉल्व हो सकता है जब आप रेगुलर बेस पर क्वेश्चन सॉल्व करते रहे, राइट। आप उन्हें सॉल्व करें, टाइमर लगाएं और देखें, अपना टाइम ट्रैक करें कि रोज रेगुलरली जब आप क्वेश्चन सॉल्व करें तो आप एक क्वेश्चन को कितना टाइम दे रहे हैं। और हमेशा जब भी क्वेश्चन आते हैं इन एग्जाम्स में तो उसमें दो पार्ट होता है, 50-50 का रेशियो रहता है। अगर ड्राइंग का 50 है तो 50 आइडिएशन का रहता है। तो वी शुड मेक श्योर कि हम ड्राइंग तो कर ही रहे हैं, साथ में ब्रेनस्टॉर्मिंग और आइडिएशन भी में भी हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो एक्टिविटीज हो रही हैं, राइट। Now, last week before exam, okay? Relaxation and confidence, quick revision and stay organized, okay? So guys, last week जो था एग्जामिनेशन में उसमें आपको एकदम मेक श्योर कर लेना चाहिए कि जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके एडमिट कार्ड पर हैं या जो भी वेबसाइट पर, यूसीट की ऑफिशियल वेबसाइट पर जो भी डॉक्यूमेंट्स बोला गया है लाने के लिए, आप सिर्फ उनको उनको ही प्रिपेयर करें, राइट। उन्हीं डॉक्यूमेंट्स की तैयारी करें और सारी स्टेशनरी और सारी चीजें रेडी होनी चाहिए, ठीक है, ताकि आप रिलैक्स माइंड से एग्जाम दे सकें। Okay. So guys, this was all about USEED 6 month strategy. I hope you liked the video, and if you if it was helpful for you, do share it with your friends. Okay. Thank you.